من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تاریخ اسلام کے سلسلے میں گفتگو جاری ہے۔ درمیان میں جو مناسبتیں آتی ہیں، مخصوص تاریخیں آتی ہیں، ان مناسبتوں کے لحاظ سے بھی کچھ بیان ہو جاتا ہے۔ چونکہ گزشتہ کل امام علی نقی علیہ السلام کی تاریخ ولادت تھی، لہذا اگر امام کا تذکرہ ہو جائے تو بہت ہی مناسب رہے گا۔ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت 5 رجب کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امام علی نقی کا جاہ و جلال، علمی منزلت اور زہد و تقوی اسی طریقے سے تھا جو آپ کے آباء و اجداد کا تھا۔ چونکہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ جس کو وہ منتخب کر کے بھیجتا ہے وہ علم وہیں سے لے کر آتا۔ یہ اللہ نے خاص امتیاز بڑھتا ہے اپنے مخصوص بندوں کے لیے، چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے وہ ائمہ علیہ السلام ہوں۔ اس لیے کہ اگر اللہ یہ امتیاز نہ برتتا تو پھر عام انسانوں میں اور ان خاصان خدا میں، منصبداران الہی میں کوئی فرق نہ رہتا۔ اس لیے کہ جیسے ہم جاہل پیدا ہوتے ہیں، ان پڑھ پیدا ہوتے ہیں، ایسی اگر وہ بھی ہوتے تو پھر ہم میں اور ان میں فرق نہیں رہتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتیاز یہ برتا کہ تم جب پیدا ہوگے تو ان پڑھ ہوگے، لیکن ہمارا بنایا ہوا جب آئے گا تو وہ پیدا ہوتے ہی علم کا مظاہرہ کرتا ہوا آئے گا۔ لہذا ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ امتیاز ہے ائمہ علیہ السلام کا، انبیاء علیہ السلام کا، کہ وہ صاحب علم آتے ہیں، علم لدنی لے کر آتے ہیں۔ وہ علم کہ جو اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے اس کو کہتے ہیں علم لدنی۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا علم لدنی۔ علم لدنی کا مطلب کیا ہے؟ وہ علم کہ جس کو اللہ نے ودیت کیا ہو، ٹھیک ہے نا؟ جس علم کو اللہ نے ودیت کیا ہو اس علم کو کہتے ہیں علم لدنی، جس کا تذکرہ خود جناب عیسیٰ نے بھی کیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ کیا فرمایا، کس طریقے سے اپنے علم کا مظاہرہ کیا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے، یعنی کتاب کا علم دے کر بھیجا ہے۔ کتاب نہیں تھی ان کے ساتھ گہوارے میں، بلکہ علم کتاب۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو کتاب کا علم لے کر آئے ہیں، تو پھر جو فخر انبیاء ہوں، جو سردار انبیاء ہوں، باعث تخلیق کائنات ہوں، وہ بھلا دنیا میں آ کر علم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ تو بدرجہ اولا وہاں سے علم لے کر آئیں گے۔ تو انبیاء علیہ السلام سب وہاں سے علم لے کر آئے۔ اب اس کے بعد جب امامت کا سلسلہ چلا تو اسی شان کو، اسی اصول کو اللہ نے جاری رکھا کہ یہ بھی وہیں سے علم لے کر آئیں گے۔ جو نتیجہ ہر امام کو آپ دیکھیں کہ ہر امام نے بچپن ہی میں اپنے علم کا مظاہرہ کیا اور کبھی بھی دنیا میں کسی استاد کے آگے زانو عیب طے نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کے آگے زانو ادب طے کرتے، کسی مدرسے میں پڑھتے، کسی اسکول میں پڑھتے، تو جو پڑھانے والا ہوتا ہے معلم وہ افضل ہوتا ہے اور جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ مفضول ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ دکھانا تھا کہ نہیں، ہمارا بھیجا ہوا سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تم دنیا میں رہ کر کتنا بھی پڑھ لو، کتنی بھی تعلیم حاصل کر لو، تم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے کہ جس مقام پر ہمارا بھیجا ہوا فائز ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ امام علی نقی علیہ السلام 6-7 سال کی عمر مبارک جب آپ کے سر سے بابا کا سایہ اٹھا، 6-7 سال کی عمر،
6-7 साल की उम्र में हुकूमत की कोशिश ये हुई कि ये बच्चा यतीम हो गया। हुकूमत इसके लिए कोशा थी कि किसी तरीके से इनका राबिता जो इनके चाहने वालों से है वो मुनक़ता हो जाए। इनके चाहने वाले, इनके मानने वाले जैसे इमाम मोहम्मद तकी के पास जमा होते थे, वो मजमा जो है इनके पास जमा ना होने पाए, इसलिए कि अगर वो मजमा इनके पास जमा होगा तो फिर हमारी मुखालफत होगी, हमारे खिलाफ मंसूबे बनेंगे। लिहाजा हम नहीं चाहते कि मजमा इनके पास जमा हो और किसी तरीके का कोई मंसूबा ये बना सकें। हुकूमत ने यह तय किया और बहाना बनाया कि चूंकि ये कमसिन है, लिहाजा इनकी तालीम का इंतजाम होना चाहिए, इनकी तरबियत का इंतजाम होना चाहिए, और चूंकि ये खानदानी रिसाले से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है, यानी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इनके लिए एक बेहतरीन मुअल्लिम का इंतजाम करे और इनकी तालीम का एहतमाम करे ताकि इनकी अच्छी तालीम और तरबियत हो सके। अब ये एक मंसूबा था, इससे कई फायदे उठाना चाहती थी हुकूमत। नंबर 1 फायदा क्या था? नंबर 1 फायदा यह था कि यह जाहिर करना कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं। बनी अब्बास सारी जिंदगी यही साबित करते रहे कि साहब हम अहले बैत के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं। ये पॉलिसी और सियासत थी बनी अब्बास की कि एक तरफ तो अहले बैत से दुश्मनी का मुजाहरा, अहले बैत के खिलाफ साजिशें हैं, मंसूबे, और दूसरी तरफ इस बात का इजहार कि नहीं हम तो अहले बैत का चाहने वाले हैं, हमसे बढ़कर अहले बैत का चाहने वाला कौन हो सकता है। तो हुकूमत ने यही सोचा, जाहिर किया कि साहब हम जो हैं इनसे मोहब्बत करते हैं, अहले बैत के चाहने वाले हैं, लिहाजा बच्चे की तालीम का इंतजाम होना चाहिए। ऐलान कर दिया गया कि बच्चा दरबार में रहेगा और यहीं पर एक अच्छे मुअल्लिम का इंतजाम किया जा रहा है। उस वक्त का जो सबसे बड़ा आलिम था कि जिसका नाम था उबैदुल्लाह कंदी, बहुत मशहूर आलिम था, बहुत बड़ा आलिम बुजुर्ग, उसको मुअय्यन किया गया कि ये इनको तालीम देंगे। चुनाचे उबैदुल्लाह को बुलाया गया और उसको दरबार में रखा गया कि तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम इनको तालीम दो। वो आने लगे। कुछ दिनों के बाद एक शख्स ने उबैदुल्लाह कंदी से पूछा कि बताइए कि कैसे तालीम का सिलसिला चल रहा है, कहाँ तक बच्चा पहुंचा, सिलसिला कहाँ तक जारी है, क्या हुआ, कितना पढ़ाया आपने। जैसे उसने ये सवाल किया, अब जो जवाब दिया है उबैदुल्लाह कंदी ने, उससे जाहिर होता है कि इमाम की इल्मी अजमत क्या थी। वो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो कि मैं पढ़ा रहा हूं उस बच्चे को? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूं बल्कि मैं खुद उससे सीख रहा हूं। मैं खुद उससे सीख रहा हूं। वो अजीब बच्चा है, जब भी कोई मसला मैं उसके सामने पेश करता हूं उसमें इतनी शिकें निकाल देता है कि मैं खुद हैरान रह जाता हूं। मैं कोई कुरान की आयत पेश करता हूं, वो उसका तर्जुमा भी बताता है, उसकी तफसीर भी बताता है, उसकी तंजील भी बताता है, उसका मिज़दाक भी बताता है, कब नाजिल हुई, किसके बारे में नाजिल हुई, सब कुछ बताता है। यानी एक बहता हुआ दरिया है, एक मौजूदान दरिया है जो उसके सीने में मौजूद है। और फिर उसके बाद कहता है, इतना बड़ा आलिम कहता है कि वो जो है रूए जमीन पर सबसे अफजल वाला इंसान है। अज़ीज़ान मोहतरम, कोई मामूली बात नहीं है, दरबारी आलिम है, बादशाह का मुअय्यन करदा आलिम है, बड़ा आलिम है, इल्म पर उसको गर्रा है। वो कह रहा है कि मैं इनसे नहीं सीख रहा हूं, ये मैं इनको नहीं सिखा रहा हूं बल्कि मैं इनसे सीख रहा हूं, और इनसे बड़ा कोई रूए जमीन पर आलिम नहीं है। तो अब ये क्या हुआ, ये कमसिनी में इमाम ने इल्म का मुजाहरा किया और बताया कि देखो कमसिनी में तुम इल्म में उस्ताद के मोहताज हुए करते हो, हम अहले बैत वो हैं कि किसी उस्ताद के, किसी मुअल्लिम के मोहताज नहीं होते, बल्कि हम खुद दूसरों को इल्म दिया करते हैं। तो यह है इल्म लदुन्नी जो इमाम लेकर आए। चुनांचे आप देखें कि इमाम का अखलाक, इमाम का किरदार, किस तरीके से इमाम ने जिंदगी गुजारी है और किस तरीके से इमाम ने हालात का मुकाबला किया। इसीलिए इमाम ने फरमाया कि 73 इसमें आजम हैं, 73 इसमें आजम हैं अल्लाह के नाम। उनमें से एक इस्म का इल्म आसिफ बिन बरखिया को दिया गया था।
आसिफ बिन बरखिया कौन थे? जनाब सुलेमान के वजीर, जिन्होंने कहा था कि मैं चश्मे ज़दन में तख्ते बिल्कीस हाजिर कर दूंगा, और चुनाचे पलक झपकते ही उन्होंने तख्ते बिल्कीस को हाजिर कर दिया। तो जब उनसे पूछा गया कि इतनी जल्दी तुम कैसे ले आए, तो उनका जवाब यह था कि इल्मुन मिनल किताब, मेरे पास किताब का थोड़ा सा इल्म है। इमाम फरमाते हैं कि आसिफ के पास इसमें आजम में से सिर्फ एक किस्म का इल्म था, तो इतना इख्तियार था कायनात पर, फिजाओं पर, हवाओं पर, कि इतनी दूर से तख्ते बिल्कीस को हाजिर कर दिया। याद रखो, आसिफ को सिर्फ एक किस्म का इल्म दिया गया था और 72 अस्मा का इल्म हमको दिया गया। अहले बैत अलैहिस्सलाम को 72 अस्मा का इल्म दिया गया था। अब जब 72 अस्मा का इल्म इनके पास था, तो फिर अल्लाह ने कितना इख्तियार दिया था कायनात पर, कितना इख्तियार था इनको हासिल, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। चुनाचे आप देखें, वक्तन फवक्तन इमाम इस बात का इजहार करते रहते थे कि देखो हम तुम्हारे मोहताज नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ने हमारे हाथ में इख्तियार दिया है, हम जो चाहे कर सकते हैं। एक मर्तबा अबू हाशिम जाफरी इमाम के पास आए और आने के बाद कहा, मौला बहुत तंगदस्त हूं, माली हालात बहुत खराब है, मेरी कुछ मदद कीजिए। इमाम ने देखा, मुस्कुराए, मदद चाहते हो? कहा हाँ फर्जंद रसूल, माली हालात बहुत खराब है, परेशान। बस एक मर्तबा इमाम ने जमीन की तरफ हाथ बढ़ाया और जमीन से कुछ संगरेजे उठाए। अबू हाशिम से कहा कि अपना दामन फैलाओ। अबू हाशिम ने दामन फैलाया, इमाम ने वो संगरेजे उनके दामन में डाल दिए। कहा अबू हाशिम देखो, कहा मौला आपने संगरेजे डाले हैं, कहीं गौर से देखो। अब जो देखा, लालो जवाहर से आगोश भरी हुई थी। ये क्या था? ये इख्तियार था, वही इसमें आजम। 72 इसमें आजम का जब इल्म दिया गया है, तो हर शय पर इख्तियार, हर शय पर इख्तियार। और इख्तियार का मतलब ये नहीं था कि आप बिला वजह उसका इस्तेमाल करते थे, इख्तियार था, लेकिन उसके बावजूद मेहनत खुद करना, जो खुद करना। खुद इमाम अपना आजूका खुद फराहम करते थे, मेहनत करके अपने हाथों से मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, और तब अपना पेट भरते थे। एक शख्स ने आकर इमाम को मजाक उड़ाया और कहा कि आप ऐसा काम कर रहे हैं, आप तो फर्जंदे रसूल हैं, आप तो अहले बैत के नुमाइंदा हैं, आप इतने बड़े शख्स होने के बाद दूध इतना मजदूरी का काम कर रहे हैं, मामूली सा काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो एक मरतबा इमाम ने उसका चेहरा देखा, कहा सुनो, ये काम मामूली काम नहीं है, ये वो काम है कि जिसको मुझसे बेहतर अफराद ने किया, ये वो काम है कि जिसको अंबिया मा सबक ने किया। कहा कि आपसे बेहतर कौन था, किसने ये काम किया? तो आपने फरमाया, मेरे जद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने किया है काम। अब आप मुझे बताइए कि अगर इमाम चाहते तो जन्नत से खाने आ सकते थे। जो इमाम संगरेजों को लालो जवाहिर में तब्दील कर सकता है, वो क्या अपने खाने का इंतजाम नहीं कर सकता था? अगर इंसान के पास कोई पावर हो, खुसूसी पावर मसलन आपको मिल जाए, इख्तियार होने के बावजूद क्या इंसान भूखा रह सकता है? अगर हुकूमत आपको एक फैसिलिटी दे दे कि भाई आप जो हैं, हम आपको खुसूसी आपके लिए एहतमाम ये कर रहे हैं कि आपको जब भी खाने पीने की कोई जरूरत हो, फौरन आप फोन करें, आप खाना आपके घर पर हाजिर हो जाएगा। तो अब इन हालात में कोई शख्स भूखा रह सकता है? पहली फुर्सत में उस इख्तियार का वो इस्तेमाल करेगा, खुद भी खाएगा और दूसरों के लिए भी मंगा लेगा, दूसरों को भी बुला लेगा। क्यों? फ्री का खाना है, फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, ये तो खासान खुदा, खुद भूखे हैं, खुद फाका कर रहे हैं, लेकिन साहिल का पेट भर रहे हैं, साहिल के सवाल को पूरा कर रहे हैं। कहा कि दुनिया ये ना समझे कि अल्लाह ने हमको इख्तियार दिया है तो उसको इख्तियार को हम अपने लिए इस्तेमाल करें, नहीं, बल्कि जिसको जरूरत होगी उसके लिए हम इस इख्तियार का इजहार करेंगे। चुनाचे आप देखें किस तरीके से अल्लाह ने इनको इख्तियार दिया
اور کس طریقے سے دنیا نے کوشش کی کہ امام کی توہین کی جائے, امام کا مذاق اڑایا جائے, لیکن اللہ نے کس طریقے سے امام کو عزت دار بنایا تھا. ایک مرتبہ مامون رشید نے امام کو بلایا, دربار کے باہر کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے, گھوڑوں پر سوار تھے محل کے باہر. جیسے ہی امام کو آتا ہوا دیکھا تو وہ لوگ احتراماً گھوڑوں سے اتر گئے اور امام کی خدمت میں احترام وہ بجا لائے. امام دربار میں داخل ہو گئے. بعد میں ان لوگوں کو خیال آیا کہ ہم نے کیوں ان کا احترام کیا. اب آپ دیکھیں, ہم نے کیوں ان کا احترام کیا, ہم تو ان سے محبت نہیں کرتے, یہ کیوں ہم نے احترام کیا ان کا, یہ کیا ہوا. سوچ رہے تھے, فکر کر رہے تھے. کہا کہ جب یہ واپس آئیں گے تب ہم احترام نہیں کریں گے. پوری کوشش توہین کرنا ہے, اہانت کرنا ہے امام کی. امام دربار کے اندر جب تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلے تب یہ لوگ تیار ہیں, منصوبہ ہے کہ کوئی امام کا احترام نہیں کرے گا. لیکن جیسے ہی فرزند رسول باہر تشریف لائے, امام کا ایسا روب و جلال تھا کہ سب پھر امام کی تعظیم پہ جوڑ گئے. ایک شخص نے پوچھا کہ کیا ہوا, تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم امام کا احترام نہیں کریں گے اور فوراً تم لوگ احترام کرنے لگے. تب تعجب خیز جملہ انہوں نے کہا کہ کیا بتائیں, ہم تو سوچ رہے تھے احترام نہیں کریں گے, لیکن نہ معلوم کیسی کیفیت طاری ہو گئی ان کا چہرہ دیکھ کر کہ ہم بے ساختہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. صلوات برما. یہ سب کیا تھا؟ حکومت کا منصوبہ فیل ہو رہا تھا. حکومت چاہتی تھی, دشمن چاہتے تھے کسی طریقے سے ان کی توہین ہو جائے. لیکن امام کو جو اللہ نے عزت دی تھی, اس عزت کا کوئی بھی خاتمہ نہ کر سکا. چنانچہ اللہ نے کتنا علم کیسا تھا امام کے پاس کہ ایک مرتبہ ایک شخص امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد گفتگو میں مصروف ہو گیا. وہ کچھ سوال کرنے کے لیے آیا تھا, لیکن جب امام سے گفتگو کرتا رہا تو وہ سوال کرنا ہی بھول گیا. اور گفتگو ختم ہونے کے بعد جانے لگا. امام نے اس کو روکا کہ بھائی رک جا, تو مجھ سے سوال کرنے آیا تھا, سوال تو کر لے. آپ دیکھیں, معمولی بات نہیں ہے. دنیاوی عالم ہوتا ہے کہ اگر اسے سوال کیا جائے تو وہ گھبرا جاتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ اس سے سوال نہ کرے. لیکن یہ اہل بیت ہیں, یہ معدن رسالت ہیں, یہ صاحبان علم لدنی ہیں, یہ خطیب منبر سلونی کے وارث ہیں, کہ جو اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تیرا سوال ہے گیا, تو سوال کرنے آیا تھا. بس جیسے ہی اس نے سنا فوراً یاد آیا کہ ہاں میں سوال کرنے آیا تھا, لیکن اب آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ پھر سوال کیا تھا. جب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میں سوال کرنے آیا تھا, تو پھر آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ میں سوال کیا کرنے آیا تھا, وہ سوال کیا تھا. بس ایک مرتبہ امام نے فرمایا, سنو, تم روزوں کے بارے میں سوال کرنے آئے تھے. تم یہ سوال کرنے آئے تھے کہ 4 روزے وہ کون سے ہیں کہ جن کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے اور جن کا بہت زیادہ ثواب ہے. بس یہ سننا تو وہ حیران رہ گیا کہ واقعا میں یہ سوال کرنے آیا تھا. آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ امام مسکرائے, چہرہ دیکھا, کہا کہ سنو, تمہارا سوال یہی تھا نا کہ وہ روزے کون سے ہیں جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے. کہا فرزند رسول, یہی سوال تھا. کہا سنو, وہ 4 روزے ہیں کہ جن کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. کہا پہلا روزہ تو وہ ہے کہ جو انسان 17 ربیع الاول کو رکھتا ہے, روزے ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی ولادت کے دن جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے, اس کا بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا. دوسرا روزہ 27 رجب کا ہے, عید مبعث کا, مبعث و معراج. 27 رجب جس دن اعلان رسالت کیا تھا حضور نے, حضور معراج پر گئے تھے, اس دن کا روزہ بھی بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اور تیسرا روزہ عید دہ العرض کا ہے,
25 ذی-قعدہ، جس دن اللہ نے زمین کا فرش بچھایا تھا، اس کو کہتے ہیں دہو الارض، جس دن زمین کا فرش بچھایا گیا تھا 25 ذی-قعدہ، خالق کی 25 تاریخ، بہت زیادہ فضیلت رکھتا۔ اور چوتھے فرمایا کہ چوتھے ہے عید غدیر کا روزہ۔ عید غدیر کے دن جو انسان روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو بے حساب ثواب عطا کرتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ سوال کرنے والا سوال بھول گیا، امام اس کو یاد دلا رہے ہیں اور پھر اس کا سوال بھی بتا رہے ہیں کہ تم یہ سوال کرنے آئے تھے۔ ایسا پیشوا کسی کے پاس ہوگا؟ ایسا رہنما کسی کے پاس ہوگا؟ ایسا ہادی کسی کے پاس ہوگا؟ عزیزان محترم، یہ ہم کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے ائمہ ایسے ہیں کہ جو سوال کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں بلکہ دعوت سوال دیتے ہیں۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہے پوچھنا ہو پوچھ لو۔ یہ پوچھنا کرنا ہی تو یہ ہے علمی عظمت۔ چنانچہ جب کوئی امام کی خدمت میں آتا تھا اور اپنی پریشانی کا اظہار کرتا تھا تو امام فوراً اس کی پریشانی کو دور فرماتے تھے۔ ایک شخص چاہنے والا جس کا نام یحییٰ بن حمزہ تھا، یحییٰ بن حمزہ، بادشاہ کا وزیر اس کا دشمن تھا، بہت زیادہ دشمنی۔ یہ بہت زیادہ پریشان تھا کہ بادشاہ کا وزیر بہت زیادہ میری مخالفت کرتا ہے، اتنی مخالفت ہے کہ میری جان کے در پہ ہے، پتہ نہیں کب مجھے قتل کر دے۔ پریشان ایک مرتبہ امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کا فرزند رسول، مجھے وزیر نے بہت زیادہ پریشان کر رکھا، بہت زیادہ ستا رکھا ہے، مجھے خطرہ ہے، خوف ہے اس بات کا کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کر دے۔ آپ دیکھیں یہ منزلیں، یہ مراحل ہماری زندگی میں بھی آتے ہیں کہ پریشان کر رہا ہے، وہ پریشان امام کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنے پریشانی کو بیان کیا۔ بس یہ سنت ایک مرتبہ 10ویں امام نے فرمایا، اے یحییٰ بن حمزہ سنو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے جب امام زین العابدین کی دعا ہے، یا من یحل عقد مکارہ، یہ جو صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے، جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس کی مشکلات کو دور کر دے گا۔ کون سے نمبر کی ہے؟ صحیفہ سجادی میں آپ دیکھ لیں، اس میں مل جائے گا آپ کو۔ اس کی شروعات ہی یا من یحل عقد المکارہ ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ جیسے اس نے سنا، وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے پہلے ہی دن نماز صبح کے بعد اس دعا کو پڑھا۔ نماز پڑھ کے بعد دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد ابھی اٹھا ہی تھا، کیا دیکھا کسی نے دق الباب کیا۔ یہ خبر آ گیا کہ صبح صبح کون آ گیا۔
दरवाजे पर गया, जाने के बाद दरवाजा खोला, क्या देखा? बादशाह का वजीर दरवाजे पर खड़ा हुआ है। जैसे ही वजीर को देखा एक मर्तबा ये हैरान परेशान, ये तो मेरा जानी दुश्मन, ये मेरे दरवाजे पर कैसे? बहुत ही मोहब्बत का इजहार कर रहा है, मुस्कुराकर मुलाकात कर रहा है। ये हैरान देख रहा है क्या बात है, क्या माजरा है। कहा कि तुमको बादशाह ने बुलाया। अब जब बादशाह का नाम सुना तो अब ये और परेशान के नाम क्या, क्यों बुलाया है, क्या वजह है? यासा बिन हमजा डरते हुए खौफजदा बादशाह के दरबार में पहुंचे। मुख्तलिफ ख्यालात जहन में आ रहे हैं, ना मालूम क्या होगा, क्या अंजाम होगा, बादशाह क्या सलूक करेगा। बस जैसे ही यसा दरबार में पहुंचे, बादशाह ने मुस्कुराकर इस्तकबाल किया, अपने बराबर में बिठाया, गुलाम से कहा कि इनको खलत और इनामात से नवाजो। अब ये हैरान परेशान कि ये बादशाह दुश्मन, वजीर दुश्मन, ये आज इनाम इकराम से कैसे मुझे नवाजा जा रहा है। फौरन इमाम के जुमले याद आ गए कि यह असर उसी दुआ का है कि जो मेरे इमाम ने मुझको तालीम दी थी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये मुश्किलात के हल इमाम ने हमें बताए हैं, ये सब किताबों में मौजूद हैं। हम परेशानियां दूसरों से बयान करते हैं, अपनी परेशानियों का हल अल्लाह और रसूल अहले बैत से नहीं पूछते कि उनका हल कैसे हो। यकीनन अगर इंसान इन दुआओं से इस्तिफादा करे, इन दुआओं को पढ़े, इनकी तिलावत करे, तो यकीनन हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। याद रखें, हमारी तमाम मसाइल बंदे हल नहीं कर सकते, हल करने वाला सिर्फ अल्लाह है। हम अपनी मुश्किलात बंदों से बयान करते हैं, अल्लाह से बयान करने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए क्या अजीब बात है। अगर कोई परेशान होता तो अपने दोस्तों से तस्करा करता है, अपने रिश्तेदारों से तस्करा करता है, इधर उधर कहता फिरता है, लेकिन वो 10-15 मिनट नहीं निकालता कि खालिस अल्लाह से बैठकर बयान करे कि या अल्लाह मैं परेशान हूँ, 2 रकअत नमाज तलब हाजत की पढ़ ले। वो दोस्त अहबाब रिश्तेदार सिवाय मजाक उड़ाने के और 10 से और तस्करा करने के उसके मसले को हल नहीं करते, या हल कर देते हैं और उसको मजाक बना दिया जाता है और उसकी मुश्किलात बयान कर दी जाती हैं, बजाय इसके कि उनको हल किया जाए, और मुश्किलात खड़ी कर दी जाती हैं। लेकिन हाँ, अगर अल्लाह से इंसान बयान करे तो उसका राज राज भी रहेगा और मसला भी उसका हल हो जाएगा। याद रखें, कभी भी परेशान हो इंसान, 2 रकअत नमाज पढ़े तलब हाजत की, अल्लाह से बयान करे। अल्लाह से बेहतर कौन हल करने वाला मसला है? ये बंदे हल करेंगे मसला, जो बंदे खुद मसाइल पैदा करते हैं। मुश्किलात तो बंदे पैदा करते हैं, मुश्किलात बंदे पैदा करने वाले वो कैसे हल्लाल मुश्किलात बन सकते हैं? हल्लाल मुश्किलात वही बनेगा कि जो मुश्किल कुशा होता है। अहले बैत रसूल अल्लाह मौजूद है, उनके होते हुए हम इधर उधर जाएं, ये गलत है, कतन सही नहीं है। सुनाचे चाहने वाले ने इमाम से बयान किया और इमाम ने फौरन हल पेश कर दिया और उसका मसला हल हो गया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये तमाम वो मसाइल हैं, ये सीरत है अहले बैत की, ये पैगाम इसीलिए रखे जाते हैं ताकि हम उनसे कुछ सीखें, हासिल करें, अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाएं। ये महफिलें, ये मजलिसें सिर्फ वाह के लिए नहीं हैं, बल्कि सीरत अहले बैत को अपने अंदर उतारने के लिए अल्लाह ने इनकी इताअत वाजिब करार दी है कि हम इनकी इताअत करें। जितना मुमकिन हो सके हमको मोहम्मद और आले मोहम्मद की सीरत पर अमल करना है, और जब अमल करेंगे तो यकीनन इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। चनाचे इमाम के कुछ इरशादात हैं, उनको अगर हम गौर से देखें और उन पर अमल करें तो यकीनन हमको कामयाबी मिल सकती है। 2-3 बयानात मैं आपके सामने बयान कर दूं ताकि जहनों में पड़ा रहे कि इमाम की क्या तालीमात हैं हमारे लिए। एक सलावत भेजो बर मोहम्मद। दसवें इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, खैर मिनल खैर फ़ाइलुहु, नेकी से बेहतर नेकी करने वाला। कोई भी अमल हो, खाली वही बेहतर नहीं है, अगर आपने उसको अमल को अंजाम दे लिया तो आप भी उससे बेहतर हो गए। हर जुमले पर गौर करें।
कौल जमील से बेहतर उसका कहने वाला होता है। अगर कोई अच्छी बात कह रहा है तो अच्छी बात बाद में होगी, पहले कहने वाला अच्छा होगा। इल्म से बेहतर उस पर अमल करने वाला है। इल्म की खाली आप तारीफ करते रहें तो उससे काम नहीं चलेगा जब तक कि आप खुद उस पर अमल ना करें। इसलिए जो चीज़ अच्छी है तो उसको अमली जिंदगी में लाना चाहिए ना इंसान को। खाली हम तारीफ करते रहें तो बेहतर नहीं है। तो इल्म से बेहतर यह है कि उस पर अमल किया जाए। आपने एक शख्स से फरमाया, जो शख्स अपने हक से ज्यादा मुतालबा करे वो महरूमी का ज्यादा मुस्तहक है। जो आपका हक है वो आपको मिलेगा। इंसान की हवीस इतनी होती है कि अपने हक से ज्यादा दूसरे का हक भी हासिल करने के लिए कोशिश करता है, जबकि उसको सोचना चाहिए कि जो तेरा हक है वो उसको मिल गया। जो करामत और बुजुर्गी से नाबलद जाहिल हो उसकी भलाई उसकी तौहीन है। हिल्म यह है कि दुश्मन पर काबू के बावजूद अपने नफ्स पर कंट्रोल रखो और गुस्से को पी जाओ। हिल्म यह है कि इंसान जो है अपने दुश्मन पर काबू पाने के बावजूद उसको माफ कर दे, जैसा कि जंग खंदक में मौला अली ने किया। अमर इब्न अब्दुद के सीने पर है, अभी कत्ल हो सकता है, लेकिन उसने तौहीन की, आप फौरन सीने से उसके उतर गए। कहा क्यों ने कत्ल किया? जब पूछा गया कहा कि अगर इस वक्त मैं कत्ल करता तो इसके कत्ल में मेरा नफ्स शामिल हो जाता, इसलिए मेरी ही तौहीन की थी, मेरी तरफ लुआब दहन फेंका था, लिहाजा अगर मैं कत्ल करूंगा तो इस वक्त मेरा नफ्स शामिल हो जाएगा और ये कत्ल अल्लाह के लिए नहीं रह पाएगा। लिहाजा फौरन उतर गए, क्योंकि मैं ये काम अल्लाह के लिए कर रहा हूं, ये जिहाद अल्लाह के लिए हो रहा है। लोग दुनिया में माल से वाबस्ता हैं और आखिरत में आमाल से वाबस्ता रहेंगे। दुनिया में इंसान कितना भी माल के पीछे रहे, लेकिन आखिरत में उसको अमल का ही नतीजा भुगतना है, जो चाहे कर ले। वहां माल काम नहीं आएगा, वहां पर उसके आमाल काम आएंगे, आमाल देखे जाएंगे। तकदीर तुम्हें वो सब दिखलाएगी जो तुम्हारे जहन और ख्याल से भी न गुजरा होगा। बदतरीन मुसीबत बद अखलाकी है। बदतरीन मुसीबत, मुसीबत से ताबीर किया इमाम ने। बदतरीन मुसीबत जो है इंसान की बद अखलाकी है। अगर इंसान बद अखलाकी का मुजाहरा कर रहा है, हर एक से लड़ना, बिगड़ना, बद ज़बानी करना, गाली देना, नाराज होना, गुस्सा करना, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? बद अखलाकी में आती हैं। बदतरीन मुसीबत इंसान की बद अखलाकी है। उसके बाद इमाम फरमाते हैं इस्तगना, यानी आरजू कम करो, जो तुम्हारे लिए काफ़ी हो उस पर राज़ी रहो। और फ़क्र फ़कीरी नफ्स के लालची होने और हद से ज़्यादा नाउमीदी में है। मामूली चीज़ के पीछे लगे रहना और हक़ीर चीज़ पर नज़रें जमाए रखना ज़िल्लत है। हक़ीर चीज़ को इंसान ही सोचे कि ये मुझको हासिल हो जाए और वो इसी को अपना मकसद हयात समझ ले कि इसी चीज़ को मैं हासिल करूँगा तो मैं ज़िंदगी में कामयाब हूँ, तो ये ज़िल्लत है, रुसवाई है। बहुत सी चीज़ें दुनिया की ऐसी हैं कि जिनको इंसान ने मकसद हयात समझ रखा है कि ये हासिल हो गया तो मैं कामयाब हूँ, अगर ये हासिल ना हो सका तो मैं नाकामयाब हूँ। नहीं, ये ज़िल्लत है। दुनिया हासिल करने के लिए इंसान को पैदा नहीं किया गया है, बल्कि आखिरत हासिल करना इंसान का मकसद होना चाहिए। उसके बाद इमाम फरमाते हैं दुनिया तो एक बाजार है जिसमें कौम फायदे में रहती है और दूसरी कौम घाटे में रहती है, नुकसान में रहती है। इमाम फरमाते हैं झगड़ा पुरानी दोस्ती को खत्म कर देता है। झगड़ा अगर आपने किसी से किया है तो जितनी भी पुरानी दोस्ती है वो सब खत्म हो जाती है। झगड़ा पुरानी दोस्ती को खत्म कर देता है, मजबूत गिरोह को खोल देता है। इसका सबसे मामूली असर ये होता है कि हर एक दूसरे को मगलूब करने की कोशिश में रहता है और दूसरे को ज़ेर करना क़त्अ ताल्लुकात की बुनियाद है। इंसान दूसरे को पस्त देखना चाहता है कि वो पस्त हो जाए, मैं बुलंद हो जाऊं, वो पस्त हो जाए, तो इससे उसको कामयाबी हासिल नहीं होती है। इमाम फरमाते हैं कि आपके बाद असहाब ने आपकी तारीफ़ करते वक्त बिला सबब बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर डाली, तो आपने फरमाया, एक शख्स ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की इमाम की, तो इमाम ने फरमाया ज़्यादा चापलूसी ज़िहानत और सूझबूझ को नाकारा बना देती है। वो दोस्ती तारीफ़ कर रहा था, वो चाह रहा था इमाम खुश हो जाएंगे जब मैं तारीफ़ करूँगा, जैसे हम लोग खुश हो जाते हैं।
लिहाजा जब तुम्हें अपने किसी मोमिन भाई के बारे में कोई काबिल एतमाद बात मालूम हो तो खुशामद के बजाय नेक नियत इख्तियार करो। अब आप देखें इमाम ने किस तरीके से मुतवज्जे किया, खुशामद नहीं होनी चाहिए बल्कि नेक नियत ही होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ का तुम्हें मुतालबा है, कोई चीज़ चाहते हो तो बयान कर दो। बेजा तारीफ करके तुम चाहो कि वो बात पूरी कर दें, वो मुनासिब नहीं है, बल्कि जो मुद्दा है वो बयान करो, नेक नियति होनी चाहिए। और उसके बाद वहाँ फरमाते हैं सब्र करने वाले की मुसीबत एक होती है और बेसब्री दिखाने वाले के लिए दो मुसीबतें। इस जुमले पर गौर करें, सब्र करने वाले के लिए एक मुसीबत और बेसब्री दिखाने वाले के लिए दो मुसीबतें होती हैं, इसलिए कि उसको सुकून नहीं मिलता है। जब सुकून नहीं मिलता तो वो इंसान बेचैन हो जाता है। लिहाजा ये तमाम वो तालीमात हैं कि जिसको सुनना और नशर करना और बयान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए कि अहले बैत के वारिस हम हैं, अहले बैत के चाहने वाले हम हैं, अहले बैत के मानने वाले हम हैं। अगर हम ही अहले बैत की तालीम से आशनाई नहीं रखेंगे तो फिर हम दूसरों तक तालीमात अहले बैत को कैसे पहुँचाएंगे। इसलिए कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तुम हमारे अक़वाल को, हमारी हदीसों को दूसरों के सामने पेश करो। जब वो लोग हमारे अक़वाल सुनेंगे तो यकीनन उनके दिल हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। अजीब जुमला इमाम ने कहा है कि हमारे चाहने वालों की जिम्मेदारी यह है कि हमारे अक़वाल को, हमारे बयानात को दूसरों के सामने पेश करें। और हमारे कलाम में कशिश ऐसी पाई जाती है कि जब पढ़ने वाला उसको पढ़ेगा तो ज़रूर हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा कि ये किसका कलाम है, ये किसका बयान है। आज हम कोटेशन के एतबार से दुनियावी मुहक्किकीन की बातों को तो कोट करते हैं गुफ्तगू के दौरान, आइंस्टाइन ने ये कहा, फला ने ये कहा, फला ने ये कहा, कोट करते नहीं, कोट करते गुफ्तगू में। अरस्तु ने कहा, अफलातून ने ये कहा, बोली सीना ने ये कहा, आइंस्टाइन ने कहा। दुनिया के मुहक्किकीन, अंग्रेज़ों के, इनके उनके अक़वाल को हम अपनी गुफ्तगू में कोट करते हैं, लेकिन सच बताइए कि क्या हम अपने आइम्मा के अक़वाल को भी कोट करते हैं? हाँ, क्यों नहीं कोट करते? इसलिए कि पता नहीं है, मालूम नहीं है। तो अगर हम भी इमाम के अक़वाल को कोट नहीं करेंगे तो फिर कौन कोट करेगा उन्हें? लिहाजा इंसान को कुछ न कुछ अक़वाल आइम्मा के याद होने चाहिए। और ये महफिलें, ये मजलिसें, ये प्रोग्राम इसलिए रखे जाते हैं हर साल ताकि उसको याद रखा जाए, उसको दोहराया जा सके, याद रखा जा सके, बयान किया जा सके। लिहाजा इस मुबारक मौके पर मैं बारगाह खुदावंद आलम में दुआ गो हूँ कि परवरदिगारा तुझको इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता हम में जो परेशान हाल, इनकी परेशानियाँ दूर फरमा, जितने मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जितने बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता फरमा, बारिल्लाह इस बीमारी का ख़ात्मा फरमा, हम सबको इससे महफूज फरमा। बारिल्लाह हमारे मरहूमीन पर रहमत नाज़िल फरमा, हमारे वालिदैन पर रहमत नाज़िल फरमा। बारिल्लाह जहाँ जहाँ भी मोमिनीन उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। बारिल्लाह परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, परचम शिर्क को कुफ्र निफाक को संदिगू फरमा। बारिल्लाह इमाम ज़माने के ज़ोन में तअज़ील फरमा और हमको उनके अवान में शुमार फरमा। आखिर दान अल्हम्दुलिल्लाह।